So we'll get a question that prove that gravitational force is conservative in nature. तो ये एक important article है. We have to prove that gravitational force is conservative in nature. Now, what does this statement means? It means that work done by or against gravitational force will depend on initial and final points and not on path followed. तो पाथ के ऊपर वर्क डन डिपेंड नहीं करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा. इसको हमने प्रूव करना है. तो लेट अस कंसिडर अ बॉडी. तो कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m lying on ground at point A. So consider a body of mass m lying on ground at point A, and we want to move the body from A to B. Now there are different ways of moving the body. Case 1, body is at point A. We want to move the body to a height h above the ground, and we want to make the body reach at this point B. Now what we observe is that the height above ground is h and the horizontal distance moved is x. So we want to find the work done by or against gravity. So let us find work done against gravity in moving body from A to B. So we are finding the work done in moving the body from A to B against gravity. तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम यहाँ पे अपना वर्क डन करना चाहते हैं. ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही है दैट इज दिस mg. So mg is the force due to gravity and I want to do work against gravity. तो अगर मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करना चाहता हूँ तो मैं बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा दैट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू योर mg, but direction will be upwards. Now here we will move the body from A to C by x and then from C to B by h. Now if I calculate the work done from A to C, the work done from A to C will be your external force into AC distance into cos of angle between your force and your given displacement. तो अगर मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नोटिस करूँ तो जब आप A से C जा रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल है और फोर्स लग रही है अलॉन्ग वर्टिकल. तो यहाँ पे जो एंगल बना वो 90 है एंड cos 90 इज 0. तो वर्क डन फ्रॉम A to C इज 0. Now if we want to find work done from C to B, अगर हम C से लेके B तक का वर्क डन निकालना चाहते हैं तो इन दिस केस यू आर मूविंग द बॉडी अपवर्ड्स और आप बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हो ये एक्सटर्नल फोर्स ये आपके mg के इक्वल है क्योंकि आप अगेंस्ट ग्रेविटी फोर्स लगा रहे हो. तो आपकी फोर्स भी ऊपर लग रही है और आप मूव भी ऊपर कर रहे हो व्हेन यू मूव फ्रॉम C to B. So here your force will be your external force into displacement cos of angle between the two. एंड क्योंकि आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो फोर्स भी ऊपर लग रही है और आपकी डिस्प्लेसमेंट भी सेम अपवर्ड्स है तो एंगल इज 0. cos 0 is 1. So your work done here will be equal to F external is mg and CB is h. So here in case 1 जो टोटल वर्क डन होगा इन मूविंग फ्रॉम A to B
ए से बी तक जाने का जो टोटल वर्क डन होगा दैट विल बी वर्क डन फ्रॉम ए टू सी प्लस वर्क डन फ्रॉम सी टू बी and work done from A to C is 0. So this work done comes out to be mgh. So work done in moving the body from A to B is mgh. तो हमने बॉडी को A से B लेके जाने का जो वर्क डन यहाँ पे ऑब्जर्व किया है वो हमारा कितना आ गया mgh. अब मैं बॉडी को देखो ये इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा इनिशियल पॉइंट है और ये मेरा फाइनल पॉइंट है, और मैंने राइट नाउ जो पाथ अडॉप्ट किया था वो ये था कि पहले मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल गया, फिर मैं ऐसे वर्टिकल गया, ये मेरा पाथ है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए से बी जाना है, अलग अलग रास्ते जो हैं वो हम ऑप्ट करेंगे। तो अब मैंने क्या किया, मैंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया और सीधा ए बी ज्वाइन कर दिया, और मैं अब ये जो ब्लॉक है इसको ए से बी लेके जा रहा हूँ ऑन द इंक्लाइन विच इज़ अ स्मूथ इंक्लाइन। तो मैं बॉडी को एक इंक्लाइन के ऊपर ए से बी लेके जा रहा हूँ। तो मैंने देखो अपना रास्ता चेंज कर दिया, इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। तो वी वांट टू टेक द बॉडी फ्रॉम ए टू बी along an incline. तो अब मैंने अपना रास्ता बदला है, पाथ बदला है। So what we are going to do is we are going to change the path, but initial and final point will remain the same. So case 2 is that we will move the body up an incline from A to B. तो हम बॉडी को along incline मूव करेंगे from A to B. So body is at A, we want to take the body to B, और वही सेम केस है कि अगर आप ये A से लेके B तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लो तो ये x है और ये हाइट h है, तो वही पॉइंट्स हैं A एंड B। बस आप अब बॉडी को हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल लेके जाने का ऑन द इंक्लाइन लेके जा रहे हो। नाउ लेट अस से दिस एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। नाउ व्हेन आई एम टेकिंग द बॉडी फ्रॉम A to B, the force which is acting due to your gravity is mg, क्योंकि हम वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, हम नेट वर्क डन नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी निकाल रहे हैं। तो पहले तो ग्रेविटी के कारण फोर्स कौन सी लग रही है, mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अगेंस्ट ग्रेविटी ये फोर्स लगाऊंगा, ये मेरा एक्सटर्नल फोर्स हो गया, और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसकी वैल्यू आपकी ग्रेविटी के इक्वल एंड ऑपोजिट है, और मैं इसके कारण वर्क डन निकालना चाहता हूँ फ्रॉम ए टू बी। तो अगर मैं ये एक्सटर्नल फोर्स को ऑब्जर्व करूँ तो इस एक्सटर्नल फोर्स के दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, ये दो कंपोनेंट्स एक्सटर्नल फोर्स के बन जाएंगे, और ये जो दो कंपोनेंट्स हैं इसमें ये वाला एंगल आपका जो आएगा ये थीटा बनेगा। तो आपके पास जो ऊपर वाला एंगल है ये बन जाएगा एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट बन जाएगा एफ एक्सटर्नल साइन थीटा। नाउ हेयर व्हेन आई फाइंड द वर्क डन ड्यू टू दिस एक्सटर्नल फोर्स, तो ये देखो एक ये आपकी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है और एक ये एक्सटर्नल, ये दो एक्सटर्नल फोर्स लग रही हैं, एंड यू आर मूविंग अप द इंक्लाइन, आप ऐसे ए से बी ऐसे जा रहे हो, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो हेयर योर वर्क डन ड्यू टू एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा, अगर मैं एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा के कारण वर्क डन निकालना चाहता हूँ तो आपका जो गिवन फोर्स है वो आ गया एफ एक्सटर्नल कॉस थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट है ए बी, और इन दोनों में एंगल देखो कितना बन रहा है। एक्सटर्नल फोर्स जो आप ले रहे हो देखो ये वाली जो फोर्स है ये ऐसे लग रही है, और आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो ये हो रही है। तो आपके डिस्प्लेसमेंट एंड ये फोर्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है 90, और परपेंडिकुलर फोर्स के कारण जो वर्क डन आएगा दैट विल बी 0। नाउ योर वर्क डन ड्यू टू
एफ एक्सटर्नल साइन थीटा, तो एफ एक्सटर्नल साइन थीटा का जो वर्क डन आएगा अगर मैं उसको निकालूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? दैट विल बी इक्वल टू योर एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स ये लग गई एफ एक्सटर्नल साइन थीटा इनटू योर ए बी एंड कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द टू। अब आप ध्यान से देखो, ये जो आपका फोर्स लग रहा है ये वाला और डिस्प्लेसमेंट दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। तो कॉस जीरो इज वन, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगल, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का फॉर्मूला है एफ डॉट एस। तो यहाँ पे आपके पास ये जो गिवन वर्क डन आया, दिस विल बी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल इज एम जी इंटू साइन थीटा इंटू ए बी। अब इस केस में अगर मैं साइन थीटा को कैलकुलेट करूं तो ये आपके पास देखो, अगर आप ये ट्राइंगल लो, ये इंक्लाइन का ये ट्राइंगल लो, तो व्हाट विल बी साइन ऑफ थीटा? इट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, so it will be perpendicular over hypotenuse. So your value of AB will be equal to BC over sin theta. And what is BC? BC is H. So that is H over sin theta. So what you get here is that work done is equal to mg sin theta into H over sin theta. तो आप नोटिस करो ये साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो आपका जो वर्क डन आया वो कितना आ गया? mgh. So in this case too, your work done will be equal to mgh. और अगर आप नोटिस करो, आपने पाथ बदल दिया है लेकिन आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। और जो आपका फर्स्ट केस में वर्क डन आ रहा था और ये जो सेकंड केस में वर्क डन आ रहा है, वो दोनों वर्क डन की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। व्हाट यू ऑब्जर्व इज दैट वर्क डन इन बोथ द केसेस सेम। नाउ वी विल take another case, case 3. We move on a staircase. So we move on a staircase of n steps. Each step of horizontal length sx and vertical length sy. तो हमारा अभी भी पॉइंट ए और बी वही है, बस सिर्फ हम मूव कर रहे हैं ऑन अ स्टेयरकेस। स्टेयर्स के ऊपर मूव करके हम ए से बी जा रहे हैं। तो यू आर मूविंग ऑन अ स्टेयरकेस, और ये जो आपका स्टेयरकेस है इसका जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो आपका लेंथ है, दैट लेंथ फॉर वन स्टेयर, एक स्टेयर की अगर हम बात करें तो उसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो एस एक्स है और वर्टिकल जो लेंथ है वो एस वाई है फॉर वन स्टेयर। और हमने यहाँ पे लेट अस से एन स्टेयर्स कंसिडर कर ली। वी हैव लेट अस से कंसिडर्ड हेयर एन स्टेयर्स। So I want to take the body from point A to B, एंड वही सेम केस है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो x है और आपकी जो वर्टिकल हाइट है वो h है। तो वही आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, बस अब रास्ता जाने का आपने फिर क्या किया है? चेंज कर दिया है आपने, स्टेयरकेस अब आपने यूज़ किया है। तो इन दिस केस वी हैव लेट अस से n स्टेप्स। तो अगर n स्टेप्स हैं तो x विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ sx एंड योर h विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ sy। अगर n स्टेप्स हैं तो एक स्टेप एस वाई लेंथ का है, तो अगर n स्टेप्स हैं तो आपकी जो हाइट होगी वो n टाइम्स ऑफ एस वाई लेंथ, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट इज n टाइम्स ऑफ एक्स वाई लेंथ। तो ये जो आपके पास गिवन केस है इसमें हम वर्क डन निकालना चाहते हैं अगेन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटी के कारण जो फोर्स लग रही है वो कौन सी लग रही है? mg। तो अगेंस्ट ग्रेविटी जो आपकी फोर्स लगेगी दैट विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स।
और ये जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे, दैट विल बी इक्वल टू mg, बिकॉज दिस इज योर फोर्स विच यू आर अप्लाइंग अगेंस्ट ग्रेविटी। ये ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लग रही है। तो यहाँ पे फॉर वन स्टेप, अगर मैं एक स्टेप की बात करूं, तो फॉर वन स्टेप अलोंग हॉरिजॉन्टल, along horizontal. Now, what will be your work done? The long x-axis आपका जो work done होगा वो क्या हो जाएगा? External force into horizontal displacement कितना है? xy। और external force किधर लग रहा है? upwards। और horizontal किधर जा रही हो? right side। तो angle कितना हो गया? 90। cos 90 is 0। तो work done in moving along horizontal is 0 for one step। एंड अगर मैं फॉर वन स्टेप वर्टिकल में निकालना चाहता हूँ, तो मेरा जो वर्क डन आएगा दैट विल बी योर एक्सटर्नल फोर्स इनटू वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट और एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन देखो सेम है। तो अगर सेम है तो ये क्या आ गया? cos 0। तो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू mg इनटू sy। नाउ दिस इज फॉर वन स्टेप। तो टोटल वर्क डन फॉर n स्टेप्स, फॉर n steps, टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो आपका जो n स्टेप्स के लिए जो टोटल वर्क डन आएगा ये केस 3 में, वो n टाइम्स ऑफ दिस वर्क डन आ गया, क्योंकि जो हॉरिजॉन्टल वाला था वो तो 0 है। एंड दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू mg into n times of sy। and what we observe is that your work done in this case is equal to mg h। तो अगर आप नोटिस करो तो आप क्या देख रहे हो, तो फर्स्ट केस में जो वर्क डन था वो भी mg h है, सेकंड केस में जो वर्क डन है वो भी mg h है, ये थर्ड केस में वर्क डन वो भी क्या है? mg h है। आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, बस रास्ता आपका अलग अलग है। एक में आपने हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल मूव किया, दूसरे में आपने इंक्लाइन पे मूव किया, तीसरे में आपने एक स्टेयर केस पे मूव किया। तो मेरे पाथ अलग अलग हैं, पर मेरा इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है। और जब तक इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम रहेगा, वर्क डन विल बी सेम। आपका वर्क डन क्या रहेगा? सेम रहेगा। केस 4। Now, in case 4, the body is moving on a curved path. The body is moving on an irregular path. So, body is moving on irregular path. So, we have this point A, and body is moving on a irregular path, and you reach at B. तो यहाँ A से आपने ये B पे पहुँचना है, और आपकी जो गिवन हाइट है वो सेम h, और ये जो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करना है दैट इज हाउ मच x। अब क्योंकि आप इरेगुलर मूव कर रहे हो, तो यहाँ पे हर टाइम आपका जो पाथ है वो अलग अलग डायरेक्शंस में आ रहा है। तो इस केस में मैं पहले एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालूंगा। तो अगर मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रीजन लिया, मैंने ये छोटा सा रीजन लिया दैट इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर। तो ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर है, इसको अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ तो ये आई कैप हो गया, ये आपके पास जे कैप हो गया। तो आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो यहाँ पे होगी दैट विल बी डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि आप ये जो आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एक छोटा सा मैंने रीजन लिया क्योंकि मेरा पाथ इरेगुलर है, तो मैंने एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया, और उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी आर के लिए ऑब्वियसली दो आपके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स आएंगे, एक अलॉन्ग एक्स एक्सिस, दूसरा अलॉन्ग वाई एक्सिस। एंड योर फोर्स हेयर इज अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स अगेन देखो, यहाँ पे जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है वो mg है, और हमारा जो गिवन आर्टिकल है वो है कि हम फोर्स जिसका वर्क डन निकाल रहे हैं वो हमारी एक्सटर्नल फोर्स है जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट लगा रहे हैं। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आप जो फोर्स लगा रहे हो, उस फोर्स की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल टू mg आई कैप।
mg j cap. Why mg j cap? Because this force is acting along vertical. ये वर्टिकल में फोर्स लग रही है, तो ये वैल्यू आपके पास क्या बन गई? mg j cap. तो देखो एक्सटर्नल फोर्स आ गया, साथ में डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का जो वर्क डन होगा वो एफ डॉट डी आर. तो आप जब ये एक्सटर्नल फोर्स और डी आर को डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यहाँ पे नोटिस करो जो आपके सेम कंपोनेंट्स हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे. अब फोर्स में आई कंपोनेंट ही नहीं है. अगर फोर्स में आई कंपोनेंट नहीं है तो वो आई वाला जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, और आपके पास मल्टीप्लाई करके ये जो वर्क डन आएगा इसकी वैल्यू कितनी आएगी? एम जी इंटू टी वाई. तो दिस इज योर वर्क डन, एंड टोटल वर्क डन फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ए टू बी. तो टोटल वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम ए टू बी, तो आपका वो जो टोटल वर्क डन होगा वो ये जो स्मॉल वर्क डन है इसको आप अब इंटीग्रेट करो, और यहाँ पे देखो लिमिट्स वाई डिस्प्लेसमेंट की आप डालोगे. तो वाई डिस्प्लेसमेंट इनिशियली आप ग्राउंड पे हो, तो जब आप यहाँ ग्राउंड पे हो तो ये आपके जो कंपोनेंट्स हैं ये 0 0 हो गए. आपने ग्राउंड को ए पॉइंट को ओरिजिन मान लिया, तो जब आप बी पे पहुंचोगे तो आपके कंपोनेंट्स क्या हो जाएंगे? एक्स कोमा एच. और लिमिट्स अब आपने किसकी डालनी है? वर्टिकल कंपोनेंट्स, डी वाई. डी वाई मतलब वर्टिकल. तो वर्टिकल में इनिशियल वैल्यू क्या है? 0. फाइनल वैल्यू क्या है? एच. अगर यहाँ पे डी एक्स आता तो फिर मैं इनिशियल वैल्यू लेता 0, फाइनल वैल्यू लेता एक्स. अगर डी एक्स डी वाई दोनों आते तो डी एक्स के लिए लेता 0 एंड फाइनल एक्स, डी वाई के लिए लेता 0 एंड फाइनल एच. पर यहाँ पे सिर्फ डी वाई आ रहा है, तो मेरे पास जो लिमिट बनेगी वो आ गई फ्रॉम 0 टू एच. सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू एम जी एच. तो ये वर्क डन भी आपके पास कितना आ गया? एम जी एच. और आप नोटिस करो इन ऑल 4 केसेस द वर्क डन इज सेम, and in all 4 cases the initial and final point is same, only the path follows is different. So since in all the 4 cases work done is same, since in all 4 cases work done is same, therefore work done by or against gravitational force will depend on initial and final point and not on path followed. तो जो वर्क डन है वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, पाथ फॉलोड पे डिपेंड नहीं करेगा. देयरफॉर योर ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स. तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स.